Hello student, today we are going to read the book Flamingo. Flamingo and Vistas. There are two books in your course of 12th. Today we are going to read Flamingo, the chapter number 2nd, Lost Spring. And this chapter is written by Anish Chand. In this chapter, we will read about some situation of poverty and the situation of the society and the atmospheric surrounding also. In this chapter, Anish Chand wrote a beautiful story about a little young child. First of all, let's read about the writer of this story. Anish Chand, 1964, was born in Rourkela. As you know, Rourkela is a place in South India and spent her childhood and adolescence in Hyderabad. Anish Chand was born in Rourkela and spent her childhood and adolescence in Hyderabad. As you know, the name of Hyderabad, the city of South, it is a very big city. She received her education in Hyderabad and in the United States of America. United States of America, as well as she received her education in Hyderabad. Her parents were both writers. Her mother and her father both were writers. Anish Chand began her career as a writer in India. Anish Chand began her career as a writer. She has been an editor and columnist for major newspapers in India and abroad also, and has authored several books. The following is an excerpt from her book titled Lost Spring. The following story we will read, that is a thread from her famous writing Lost Spring. Stories of stolen childhood. Here she analyzes the grinding poverty and the traditions which condemn these children to a life of exploitations. In this story, Anish Chand describes about the poverty of the children and exploitation of the children in the society also. Let's start the chapter. Sometime I find a rupee in the garbage. Why do you do this? I ask Sahib from I encounter every morning scrounging for gold in the garbage dumps of my neighborhood. Sahib left his home long ago. Set amidst the green fields of Dhaka, his home is not even a distant memory. There were many storms that swept away their fields and homes. His mother tells him that's why they left, looking for gold in the big city where he now lives. I have nothing else to do, he muttered, looking away. Go to school, I say, glibly, realizing immediately how hollow that why must sound. There is no school in my neighborhood. When they build one, I will go. If I start a school, will you come? I ask, half joking. Yes, he says, smiling broadly. A few days later, I see him running up to me. Is your school ready? It takes longer to build a school, I say, embarrassed at having made a promise that was not meant. But promises like mine abound in every corner of his bleak world.
After months of knowing him, I asked him his name. Sahib-e-Alam, he announces. He does not know what it means. If he knew its meaning, Lord of the universe, he would have a hard time believing it. Unaware of what his name represents, he roams the streets with his friends, an army of barefoot boys who appear like the morning birds and disappear at noon. Over the months, I have come to recognize each of them. Why are you not wearing chappals? I asked one. My mother did not bring them down from the shelf, he answered simply. Now start the explanation of this chapter. Sometime I find a rupee in the garbage. कई बार मुझे कूड़े में रुपए मिलते हैं. समटाइम आई फाइंड, मैंने कई बार पाया है कुछ रुपयों को और रुपी इन द गार्बेज, कूड़े में. वाई डू यू डू दिस? तुम ये क्यों करते हो? आई आस्क साहेब whom I encounter every morning is scrounging for gold in the garbage dumps of my neighborhood. मैं साहिब से रोज़ पूछता हूँ या पूछती हूँ, जब मैं प्रतिदिन कूड़े के ढेर में उसे सोने की खोज करते हुए अपने पड़ोस में पाता हूँ, तो मैं उससे पूछता हूँ कि तुम ये काम क्यों करते हो? तुम कूड़े में क्या ढूंढते हो? क्या मिलता है तुम्हें? साहिब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग एगो. साहिब ने अपना जो घर था वो बहुत समय पहले छोड़ दिया था, अपने घर को त्याग दिया था. Sat amidst the green fields of Dhaka, और ढाका में his home is not even a distant memory. और ढाका में उसका जो घर था, बांग्लादेशी था, वो बांग्लादेश का रहने वाला था. ढाका में उसका जो घर था, उस घर को बहुत पहले ही छोड़ दिया था और वो घर इसके लिए सिर्फ एक याद बनकर रह गया था. There were many storms that swept away their fields and homes. बहुत सारे तूफान आते रहते थे और उन तूफानों के वजह से उन लोगों के घर और उनके खेत खलियान सब कुछ तबाह हो जाया करता था, सब कुछ उड़ जाया करता था, ख़राब हो जाया करता था, और जिससे इन लोगों को बड़ा नुकसान, अपने घर का भी, खेत का, पूंजी का भी नुकसान हुआ करता था. हिज मदर टेल्स हिम, उसकी माँ उसे बताया करती थी, हमेशा ये बात उसे पता चलती थी. दैट्स वाई दे लेफ्ट, और यही वजह थी कि उन लोगों ने ढाका जैसे शहर को छोड़ दिया और हिंदुस्तान आ गए थे. दैट्स वाई दे लेफ्ट लुकिंग फॉर गोल्ड इन द बिग सिटी वेयर ही नाउ लिव्स. यही वजह थी वो लोग उस शहर को छोड़ के हिंदुस्तान के बड़े शहरों में आके सोने की तलाश को या कूड़े में कुछ पैसों की तलाश को करते रहते थे. आई हैव नथिंग एल्स टू डू, ही मटर्ड लुकिंग अवे. उसने मेरी तरफ देखकर बोला, मेरे पास इसके अलावा कोई काम नहीं है. ये बड़बड़ा कर उसने मुझे जवाब दिया. गो टू स्कूल आई से ग्लिबली, मैंने उससे कहा स्कूल क्यों नहीं जाते, विद्यालय क्यों नहीं जाते हो? रियलाइजिंग इमीडिएटली हाउ हॉलो द एडवाइस मस्ट साउंड. और थोड़ी देर के बाद मुझे इस चीज़ का रियलाइज़ भी हो गया कि मैंने जो उसको सलाह दी थी वो कितनी खोखली थी, कितनी बेकार थी, जिसका कोई भी यूज़ नहीं था. वो खोखली और वेस्ट मेरी एडवाइस थी. देयर इज़ नो स्कूल इन माई नेबरहुड, क्योंकि मेरे पड़ोस में कोई भी, उसने मुझे जवाब दिया, क्या जवाब दिया कि मेरे पड़ोस में कोई भी स्कूल नहीं है. वैन दे बिल्ड वन आई विल गो, और उसने मुझसे कहा कि जब स्कूल बन जाएंगे तो मैं स्कूल चला जाऊंगा, स्कूल में पढ़ूंगा, यही मैं करूंगा. इफ़ आई स्टार्ट ए स्कूल विल यू कम, आई हाफ जोकिंग. मैंने उससे थोड़ा सा मजाक करते हुए कहा, क्या मैं स्कूल बनवाऊं तुम्हारे लिए? मैं स्कूल बनवाऊंगा तो क्या तुम पढ़ने के लिए आओगे? यस ही सेज स्माइलिंग ब्रॉडली. हाँ, उसने मुस्कुराते हुए कहा कि हाँ, मैं पढ़ने के लिए आऊँगा. तुम स्कूल तो बनवाओ, मैं ज़रूर पढ़ने के लिए आऊँगा. A few days later, I see him running up to me. कुछ दिन के बाद मैंने देखा कि वो दौड़ता हुआ मेरी तरफ आ रहा है, मेरे पास आ रहा है. Is your school ready? और मुझसे पूछता है, क्या आपका स्कूल तैयार हो गया है? क्या आपने स्कूल बनवा लिया है?
इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड अ स्कूल आई से, मैंने उससे कहा कि स्कूल बनने में समय लगता है, एक बिल्डिंग बनने में बहुत समय लग जाता है। आई से एम्ब्रेस एट हैविंग मेड अ प्रॉमिस दैट वाज नॉट मीन, मुझे अपने ऊपर शर्म आई, मुझे अपने ऊपर इस वजह से शर्म आई कि मैंने उससे जो वादा किया था, मैंने उससे जो सवाल किया था, उसका कोई भी मतलब नहीं था, सब बेकार था और मैंने उससे फालतू में ही ऐसा सवाल कर दिया था। बट प्रोमिसेस लाइक माइन अबाउंड इन माई एवरी कॉर्नर ऑफ हिज ब्लीक वर्ल्ड, और लेकिन मेरे द्वारा किया गया वादा, उसकी जो अंधेरी दुनिया थी, उसकी जो डूबती हुई और धुंधली दुनिया थी, उस डूबती हुई अंधेरी दुनिया में इस तरह के वादे कई लोगों ने, हज़ारों लोगों ने उससे कर रखे थे और उसको इस तरह की झूठे वादों की आदत हो चुकी थी कि पूरी दुनिया में सब लोग झूठे वादे ही करते हैं और गरीबी में उसको इस तरह की बातें सहने की और सुनने की और समझने की क्षमता हो चुकी थी। आफ्टर मंथ ऑफ नोइंग हिम आई आस्क्ड हिम हिज नेम, जब उसको जाने हुए मुझे 1 महीना हो गया, मैं उसको जानने लगा, मैं उसको समझने लगा, आखिरकार मैंने उससे उसका नाम पूछ लिया। मैंने उससे पूछा कि तुम्हारा क्या नाम है? साहिबे आलम ही अनाउंसेस, उसने मुझे जवाब दिया कि उसका नाम साहिबे आलम है, साहिब ए आलम। ही डज नॉट नो व्हाट इट मीन्स, और वो नहीं जानता था कि उसके नाम का मतलब क्या है, साहिब ए आलम। इफ़ ही न्यू इट्स मीनिंग, यदि वो इसका मतलब जानता, लॉर्ड्स ऑफ द यूनिवर्स, जिसका मतलब होता है साहिब यानी कि साहब यानी स्वामी, आलम इसका मीन्स होता है वर्ल्ड यानी दुनिया यानी संसार यानी कायनात यानी यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड। साहिब आलम इसका मीन्स है लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, पूरे ब्रह्मांड का स्वामी, और उसका नाम, और वो काम क्या करता है, कूड़ा बीनने का। तो उसको अपने नाम का मतलब बिल्कुल भी नहीं पता था। ही वुड हैव अ हार्ड टाइम बिलीविंग इट, और यदि उसे पता चलता तो उसको यकीन ना होता कि उसके नाम का ये मतलब होता है। क्यों यकीन ना होता? क्योंकि वो काम तो कूड़ा बीनने का करता है। अनअवेयर ऑफ व्हाट हिज नेम रिप्रेजेंट, तो अपने नाम का मतलब उसको पता ही नहीं था, उसको बिल्कुल भी इसकी जानकारी नहीं थी। अनअवेयर, बिल्कुल उसको जागरूक ही नहीं था, उसके बारे में बिल्कुल पता नहीं था। अनभिज्ञ, अनअवेयर ऑफ व्हाट हिज नेम रिप्रेजेंट, इस चीज़ से अनभिज्ञता, इस चीज़ से अज्ञानता कि उसका नाम किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। ही रोम्स द स्ट्रीट विथ हिज फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ सड़कों पर घूमता है। एन आर्मी ऑफ बेयरफुट, और कैसे दोस्त, बहुत सारे दोस्त जो नंगे पाँव हैं, बेयरफुट जिनके पैरों में न जूता है न चप्पल है। एन आर्मी ऑफ बेयरफुट बॉयज हु अपीयर लाइक द मॉर्निंग बर्ड्स, और वो बच्चे जो सुबह की चिड़ियों की तरह अपीयर हो जाते हैं, चहचहाने लगते हैं, एंड डिसअपीयर एट नून, और दोपहर में गायब हो जाते हैं। ये झुंड इस तरह से आता था सुबह सुबह कूड़ा बीनने के लिए और गायब हो जाता था। ओवर द मंथ्स, बहुत सारे महीने बीतते गए। आई हैव कम टू रिकॉग्नाइज ईच ऑफ देम, और धीरे धीरे मैंने उनमें से सबको पहचानना शुरू किया, वन बाई वन सबको पहचानने लगा। वाई आर नॉट यू बियरिंग चप्पल, आई आस्क्ड वन, उनमें से मैंने एक को पूछा, एक से जानने की कोशिश की, अच्छा ये बताओ तुम चप्पल क्यों नहीं पहनते हो? माई मदर डिड नॉट ब्रिंग देम डाउन फ्रॉम द शेल्फ, ही आंसर सिंपली, उसने साधारण से सीधे तरीके से जवाब दिया कि मेरी माँ, माई मदर डिड नॉट ब्रिंग देम, नहीं लाती है, डाउन फ्रॉम द शेल्फ, जो अलमारी बनी उसके ऊपर जो चप्पल रखी है, अंदर चप्पल रखी है, उसमें से मेरी माँ वो चप्पल नहीं निकालती है, इसलिए हम लोग नंगे पाँव ही घूमते रहते हैं। इस तरह के सवाल उसने उससे किया, तब उसने उसका जवाब दिया। इवन इफ शी डिड ही विल थ्रो देम ऑफ एट्स अनदर हु इज़ वियरिंग शूज दैट डू नॉट मैच, और उसके बाद उसने दूसरे लड़के पर अपनी नज़र दौड़ाई,
जो लड़का शूज़ तो पहने हुए था लेकिन वो दोनों शूज़ एक दूसरे से मैच नहीं करते थे, वो डिफरेंट शूज़ थे, अलग अलग डिज़ाइन, अलग अलग कलर के शूज़ थे। व्हेन आई कमेंट ऑन इट ही शफल्स हिज फीट एंड सेज नथिंग। जब मैंने उसके ऊपर कमेंट किया कि तुम्हारे शूज़ तो अलग अलग कलर के हैं, तो उस लड़के ने कोई कमेंट नहीं किया और अपने पैरों को छुपाने लगा। आई वॉन्ट शूज़, उसने कहा मुझे जूते चाहिए है। सेज अ थर्ड बॉय हु हैज़ नेवर ओन्ड अ पेयर ऑल इज लाइफ। एक तीसरे लड़के ने ये बात बोली कि मुझे जूते चाहिए, मैंने अपने पूरे जीवन में कभी जूते नहीं पहने हैं। ट्रैवलिंग अक्रॉस द कंट्री आई हैव सीन चिल्ड्रन वॉकिंग बेयरफुट। मैंने पूरे देश की यात्रा की थी और पूरे देश की अपनी इस यात्रा में मैंने बहुत सारे बच्चों को बिना शूज़ और बिना जो है चप्पल के, बिना जूतों के देखा था, बिना स्लीपर्स के देखा था। इन सिटीज़, बहुत सारे शहरों में, ऑन विलेज रोड्स, जो कि गांव के रास्तों से शहरों की तरफ आ जाते थे। इट इज़ नॉट लैक ऑफ मनी, ये पैसे की कमी की वजह से नहीं होता था ऐसा, बट अ ट्रेडिशन टू स्टे बेयरफुट। बल्कि बहुत सारे गांव के ऐसे लोग भी हुआ करते थे जो परंपरा समझते थे, कभी जूता चप्पल नहीं पहनते थे, नंगे पांव रहना ही एक परंपरा समझते थे। इज़ वन एक्सप्लेनेशन, मुझे एक ने बताया था। आई वंडर इफ दिस इज़ ओनली एन एक्सक्यूज़ टू एक्सप्लेन अवे अ परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी। मुझे आश्चर्य हुआ कि उस लड़के ने बताया कि ये परंपरा नहीं, बल्कि उनकी गरीबी की वजह से उसने अपने पूरे जीवन में कभी भी एक जोड़ी जूता सही से पहना न था और ना ही वो जानता था कि किस तरह का जूता पहना जाता है। तो इस तरह की जो भी सिचुएशन वो राइटर देख रही थी, तो वो अपनी स्टोरी में ये एक्सप्लेन करती जा रही हैं कि पावर्टी किस तरह से जो है वहाँ पर हावी थी उन बच्चों के ऊपर। After that, I remember a story a man from Udupi once told me. As a young boy, he would go to school past an old temple where his father was a priest. He would stop briefly at the temple and pray for a pair of shoes. 30 years later, I visited his town and the temple, which was now drowned in an air of desolation. In the backyard where lived the new priest, there were red and white plastic chairs. A young boy dressed in a grey uniform, wearing socks and shoes, arrived, panting, and threw his school bag on a folding bed. Looking at the boy, I remembered the prayer another boy had made to the goddess when he had finally got a pair of shoes. Let me never lose them. The goddess had granted his prayer. Young boys, like the son of the priest, now wore shoes, but many others, like the rag pickers in my neighborhood, remained shoeless. My acquaintance with the barefoot rag pickers leads me to Simapuri, a place on the periphery of Delhi, yet miles away from it. Metaphorically, those who live here are squatters who came from Bangladesh back in 1971. Saif family is among them. Simapuri was then a wilderness. But it is no longer empty. In structures of mud with a roof of tin and tarpaulin, devoid of sewage, drainage, or running water, live 10,000 rag pickers. They have lived here for many years, more than 30 years, without an identity, without permits, but with ration cards that get their names on voters' list and enable them to buy grains,
food is more important for survival than an identity. If at the end of the day we can feed our families and go to bed without an aching stomach, we would rather live here than in the fields that gave us no grain, say a group of women in tattered saris. When I asked them why why they left their beautiful land of green fields and rivers, wherever they find food, they pitch their tents that become transit homes. Children grow up in them, becoming partners in survivals. And survivals in Simapuri means rag picking. Throughout the years, it has acquired the proportion of fine art. Garbage to them is gold. It is their daily bread. A roof over their heads, even if it a leaking roof, but for a child it is even more. Now explain this paragraph also. The boy said that I remember a story a man from Udupi once told me. राइटर कह रही है कि मुझे एक कहानी याद आती है. कौन सी कहानी याद आती है? उदुपी एक व्यक्ति था जिसने इस कहानी को मुझे सुनाया था. एज अ यंग बॉय ही वुड गो टू अ पास्ट एंड ओल्ड टेम्पल. जब वो छोटा था तो पास के ही एक मंदिर में वह जाया करता था. वेयर इज फादर वाज अ प्रीस्ट. जिस मंदिर के पास से वह गुजरता था जहाँ पर उसके पिता एक पुजारी थे. ही वुड स्टॉप ब्रीफली एट द टेम्पल एंड प्रे फॉर अ पेयर्स ऑफ शूज़. उस मंदिर के पास कुछ देर के बाद वो जूते की एक जोड़ी के लिए प्रार्थना करता था कि काश मुझे एक जोड़ी जूता मिल जाए. एक छोटे से बच्चे की स्टोरी है. उसके पास जूते नहीं थे. जब वो मंदिर के पास से गुजरता था तो थोड़ी देर के लिए उस मंदिर के पास खड़ा हो जाता था और मंदिर में भगवान से एक जोड़ी के लिए प्रार्थना किया करता था. 30 years later I visited his town and the temple. 30 साल के बाद मैं इस नगर को और उसके मंदिर को देखने आया हूँ. वो नगर, वो मंदिर which was now drowned in the air of desolation. वो गांव which was जो कभी डूबा रहता था गरीबी में, निर्धनता में, परेशानी में, जो गांव हमेशा डूबा रहता था. इन द बैक यार्ड वेयर लिव्ड अ न्यू प्राइज. मैंने देखा कि पीछे के आंगन में वहाँ पर एक नया पुजारी रहने लगा था. अ यंग बॉय ड्रेस्ड इन अ ग्रे यूनिफॉर्म. एक छोटा सा लड़का आया जो कि ग्रे कलर की ड्रेस को पहने हुए था. सॉक्स और शूज़ भी पहने हुए था. अराइव्ड पेंटिंग एंड थ्रू हिज स्कूल बैग ऑन अ फोल्डिंग बेड. वो अपनी स्कूल बैग को उतार कर वहाँ पर फेंक देता है. लिफ्ट इन द न्यू प्राइज देयर वर रेड एंड वाइट प्लास्टिक चेयर. जहाँ पर जो है लाल और सफ़ेद रंग की प्लास्टिक की चेयर भी पड़ी हुई थी. एक अ यंग बॉय ड्रेस इन अ ग्रे यूनिफॉर्म. एक छोटा सा बच्चा जो है ग्रे कलर की, स्लेटी कलर की, भूरे रंग की ड्रेस को पहने हुए, बियरिंग सॉक्स एंड शूज़, सॉक्स और शूज़ भी पहने हुए. अराइविंग पेंटिंग एंड थ्रू हिज स्कूल बैग ऑन द फोल्डिंग बेड. जो कि अपने जूतों को और अपनी यूनिफॉर्म और बैग को उतार कर जो है उसे बेड पर पटक देता है. लुकिंग एट द बॉय. जब मैंने उस लड़के की तरफ देखा, आई रिमेंबर द प्रेयर अनदर बॉय हैड मेड टू द गॉडेस व्हेन ही हैड फाइनली गॉट अ पेयर ऑफ शूज़. तो मुझे उस बच्चे की प्रार्थना याद आ गई. उस छोटे की बच्चे की प्रार्थना याद आ गई जो हमेशा भगवान से या देवी से एक जोड़ी जूते मिल जाएं, इसकी ही प्रार्थना किया करता था कि काश मुझे एक जोड़ी जूते मिल जाएं. और आज ये बच्चे को देख लो, इस प्राइस के बच्चे के देख लो, इसके पास शूज़ भी हैं, सॉक्स भी हैं, यूनिफॉर्म भी है. इस गुस्से में आके अपने सारी चीज़ों को बेड पर फेंक देता है. लेट्स बी नेवर लूज दैम. और प्रार्थना करता था वो बच्चा कि काश मुझे जूते मिल जाएं और मैं उन जूतों को कभी नहीं खोऊंगा, अपने पास हमेशा सजो के रखूँगा.
द गॉडेस हैड ग्रांटेड हिज प्रेयर, देवी ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली, उसकी प्रार्थना को जान लिया। लेट मी नेवर लूज दैम, पुजारी के बेटे ने, और उसने कहा कि लेट मी नेवर लूज दैम, मैं उसे कभी नहीं खोऊंगा। द गॉडेस हैड ग्रांटेड हिज प्रेयर, भगवान ने उसकी प्रार्थना सुन ली। यंग बॉय लाइक द सन ऑफ द प्रीस्ट नाउ वोर शूज़, वो बच्चा जैसे कि पुजारी का बच्चा उस तरह से वो भी बच्चा हुआ करता था, और वो जूतों को जो कूड़ा बीनने वाला हुआ करता था उसे उन जूतों को पहना करता था। बट मैनी अदर्स लाइक द रैग पिकर इन माई नेबरहुड रिमेन शूज, लेकिन फिर भी वो बच्चा वही था जो प्रार्थना कर रहा था। फिर भी कह रहे हैं कि मेरे पड़ोस में रहने वाले बहुत सारे जो रैग पिकर थे, कूड़ा बीनने वाले जो लोग थे, वो अभी भी बिना जूतों के काम चलाते थे, अभी भी बिना जूतों के रहते थे, बेयर फुट रहते थे, जिसकी वजह से क्या होता था, वो नंगे पाँव ही रहा करते थे। That's the end of the 3 paragraph today. I hope you like the video and I hope you understand all the paragraph. If you have any problem, you can come in the school and discuss with us to this topic and another topic with other teacher also. Please comment in the comment box if you have any problem. If you like the video, you have to read this chapter very perfectly, very understandingly and very quietly. Best of luck. Thank you.